الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمد للہ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے شعبان، اور اللہ کے کرم و فضل سے آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اچھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ٹاپک جتنے جو بھی ہماری بہنیں ہیں ان تک پہنچیں، یا جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں ان تک حق بات پہنچے بہنوں۔ اور جتنی بھی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ملاوٹ ہے دین میں، یا پھر بدعت ہے یا پھر ایجاد ہے، اس چیز کو ہم ختم کر دیں۔ ہمارا آج کا جو مقصد ہے شعبان کو پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے کیا کریں کہ حق کو پہچان لیں، اور جو ہے جو صرف اور صرف شریعی رول ہے، اور جو شریعہ سنت اور قرآن سے ثابت ہے اسی کو کیا کریں، فالو کریں۔ تو شعبان جو ہے 8واں مہینہ ہوتا ہے اسلامک کیلنڈر کا، اور اس میں ہم بہت سارے اعمال لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں خاص راتوں میں خاص عبادت کرتے ہیں، خاص جو ہے کیا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور مختلف قسم کے کھانے بناتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سب چیزیں عام طور پر اپنے آس پڑوس میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ماہ شعبان کے کیا فضائل ہیں، اس کے تعلق سے کیا صحیح باتیں آتی ہیں، اور اس مہینے میں کیا کچھ ہے جو غلط ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، جو لوگ آج کل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس میں یہی جانیں گے، انشاءاللہ ان دونوں باتوں پر جو ہے کیا کریں گے، ہم غور و فکر کریں گے۔ اس مہینے کے فضائل اور اس میں کی جانے والی بدعتوں کے بارے میں جانیں گے، اور آج کے اس لیکچر کا مطلب صرف یہی ہوگا کہ ہم کیا کر لیں، حق کو سمجھ لیں اور حق کو جان لیں۔ مقصد کسی قوم کو یہاں پر ذلیل کرنا یا رسوا کرنا یا کسی کے خلاف بات کرنا نہیں ہے۔ ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ جو حق بات ہے، یعنی کہ جو دین ہے اور جو قرآن اور جو سنت سے ثابت ہے، اس چیز کو جان لیں، بلکہ ہم اپنی اصلاح کریں گے یہاں پر، اور جو ہے دوسرے لوگوں کی اصلاح کے تعلق سے جو ہے یہاں پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، خالص کس چیز کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں گے یہاں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، جو کہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں آتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ تو خالص اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہم سب دنیا میں جس مقصد سے آئے ہیں وہ ہے کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی، اور یہ عبادت مستقل کرنی ہے، صبح اور شام کرنی ہے بہنوں، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، ہر ٹائم جو ہے یہ عبادت کرنی ہے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ چند دنوں میں، کچھ چند دنوں کو منا لینا، چند دنوں کو کیا کر لینا، منا کر چھوڑ دینا، کچھ راتوں کو جاگ لینا، اور کچھ دن کے جو ہیں روزے رکھ لینا۔ اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت رکھا ہے کہ اللہ کی عبادت کیا ہے، صبح سے لے کر شام تک، اٹھنے سے لے کر سونے تک، اور پیدائش سے لے کر موت تک جو ہے ہر عمل ہمارا کیا، شریعت کے مطابق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل جو ہے ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں کہتے ہیں، اور میں نے جن اور آدمی کو اس لیے بنایا کہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب ہر کام کتاب اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور کتاب کون سی ہے ہمارے پاس، یعنی کہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور یہ عبادت کب تک کرنی چاہیے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکسٹ سلائیڈ میں سورہ ہجر کی آیت ہے، جو کہ ہے آیت نمبر 98 اور 99 میں فرماتے ہیں۔ تو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کے پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ حمد اور ثنا، یعنی کہ تسبیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا کریں، بیان کریں، اور کب تک بیان کریں، وَعْبُدُوا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو عبادت کیا ہے،
پیدائش سے لے کے موت تک عبادت کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان اور جناتوں کو صرف اور صرف خالص عبادت کے لیے بنایا۔ اٹھتے جاگتے، رات کو آنکھ کھلی تو عبادت، اس کے علاوہ ہر دن عبادت، یا پھر راتوں کو جاگ کر عبادت، انسان سو کر اٹھ رہا ہے تو عبادت، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، حتیٰ کہ کیا موت آ جائے۔ الحمدللہ۔ تو پتہ کیا چلا ہمیں اس چیز سے کہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ کب تک کرنی ہے؟ موت تک کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ اس میں یہ نہیں ہے کہ کچھ دن کر لیے اور کچھ دن چھوڑ دیے۔ تو عبادت کیا ہے؟ ایک مسلسل چیز ہے جو کہ انسان کو ہمیشہ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہم سب زندگی کیا ہے، یہ ہم سب کی زندگی کا مقصد اور مرکز ہونا چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کچھ خاص دنوں میں کچھ خاص راتوں کو ایسی اہمیت دے دی جو شریعت میں نہیں ہے، اور کچھ ایسے اس میں عمل جوڑ دیے ہیں یا پھر لگا دیے ہیں جو کہ شریعت کی طرف تو کیا ہے، ان کی طرف سے سینکشن نہیں ہے، یعنی کہ اس سے ثابت نہیں ہے۔ پرسنلی انہوں نے کیا کیا، ڈیسائیڈ کیا اور اس کے فائدے ہوں گے، لہٰذا اس کام کو ایسے کریں گے، ہے نا؟ تو یہ سب کیا ہے، انسان کا پرسنل وہ ہے، جبکہ کوئی بھی چیز جو ہے نہیں ہے۔ تو کچھ راتوں کے بارے میں سے ایک رات جو ہے اتنی اہمیت دی جاتی ہے جو کہ ماہ شعبان میں آتی ہے، جس کو 15 شعبان کی رات کہتے ہیں، اور عام زبان میں سب جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ زیادہ اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ ہے اس مہینے کی 15 تاریخ کی، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے، پہلے شب بارات کہا جاتا تھا، اور جب لوگوں نے اس کو کیا مانگا، اس چیز کی دلیل مانگی، تو اب لیلۃ المبارک یعنی کہ جو ہے دلیل کے حساب سے جو ہے اس کا نام چینج کر دیا گیا۔ اور اس سے ریلیٹڈ کتابیں بھی ہیں کافی ساری، جس کے فضائل، جس کے فوائد یعنی کہ فائدے، اور جس کی اہمیت، روزہ، عبادتیں، اس کے علاوہ جو ہے کیا ہے، اس کی جو ہے قبروں کی زیارتیں، ذکر اور اذکار جو ہیں اسی سے ریلیٹڈ جو ہے انسان نے کیا کیے ہیں، الگ الگ کر لیے ہیں۔ جبکہ ہم نے کیا پڑھا کہ عبادت تب تک کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، اور عبادت کیا ہے، ایک مسلسل چیز ہے، مسلسل وہ ہونا چاہیے انسان کا عمل، یہ نہیں کہ کسی دن کر لیا اور کسی دن نہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک کیا ہے، پراپر جو ہے ہم نے فیسٹیول بنا لیا اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی خاص دن یا رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا درست نہیں، جب تک کہ شریعت سے وہ چیز ثابت نہ ہو۔ عبادت تو ایک ایسا عمل ہے جو مستقل کرنا ہی ہے، عبادت ایک ایسا عمل ہے جو کہ مستقل کرنا ہی ہے۔ اور پھر آپ نے آگے جو ہے ایک حدیث ہے اس میں فرمایا کہ راتوں میں صرف جمعے کی رات کو خاص نہ کیا کرو، کیونکہ جمعے کی فضیلت بہت زیادہ بتائی گئی، اور ہم نے جب کیا کیا تھا، جمعے کی فضیلت جب پڑھی تھی اور کہا تھا کہ جمعے میں اتنی فضیلت ہوتی ہے اور جمعے کا دن اتنا زیادہ ہے، اور جنت والوں کو جمعے کے دن جو ہے اس چیز کا کیا ہوگا، دیدار ہوگا، تو اس کی جب فضیلت بتائی گئی، تو جمعہ اتنا زیادہ مقبول دن ہونے کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا، خود ہی سے اس کے دن کا روزہ رکھنے لگے، خود ہی سے کیا کیا، اس دن جو ہے رات رات بھر جو ہے کھڑے ہونے لگے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راتوں میں صرف جمعے کی رات کو کیا ہے، خاص نہ کیا کرو اور خاص روزہ نہ رکھا کرو، مگر ہاں، جمعے کے دن تمہارے ان دنوں میں سے آ جائے جن میں تم عام دنوں میں روزہ رکھتے ہو تو الگ بات ہے۔ یعنی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جو ہے قیام اللیل فرماتے تھے، یعنی کہ ہر رات نماز کے لیے کھڑا ہوتے تھے، یہ نہیں تھا کہ کسی صرف اور صرف ایک دن جو ہے پرٹیکولر وہ کھڑے ہوئے اور پھر صحابہ نے بھی وہی فالو کیا اور ہم لوگ بھی جو ہے وہی فالو کریں۔ تو کیا ہے، عبادت مسلسل چیز ہے جو کہ کیا ہے، عام طور پر ہونی ہی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن خاص طور پر سے کیا ہے، جمعے کا قیام رات میں اور جمعے کا روزہ جو ہے یہ کیا ہے، منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنوں کا سردار کون ہے، جمعہ ہے، اور لوگ پھر اس کو لینے لگتے ہیں کہ جب اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو جو ہے اس میں کیوں نہیں۔ اسی طریقے سے شعبان ہے، اور شعبان کی بھی بہت زیادہ فضیلت بتائی جاتی ہے جو کہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس حساب سے لوگوں نے جس چیز کی فضیلت ہوتی ہے اس چیز کو بہت زیادہ ویسے بنا لیا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس رات کو، اس دن کے کہیں مسلمان کیا کرتے ہیں، خاص عبادت نہ کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا۔ تو لوگ سوچے کہ خاص عبادت ہے کیونکہ خاص دن، خود کی عقل نہ لگائیں، لاجک، کیونکہ جو ہے جو چیز پہنچ گئی، ایمان پہنچ گیا،
چیزیں پہنچ گئی، اب اس کے بعد اس کے اندر اپنا لاجک لگا کے کہ اچھا یہ دن خاص ہے تو اس کے دن میں اور زیادہ جو ہے یہ چیز کر لوں، جب تک اس چیز کا کیا نہ ہو وہ نہ ہو۔ ہاں جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہاں اس دن آپ خوب عبادتیں کریں تو آپ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جیسے کہ اس دن آپ کیا کریں، آپ بہت ساری چیزیں کریں تو آپ کریں بے شک، ٹھیک ہے۔ تو اس مہینے کے اندر خاص طور سے ایک عبادت کا جو ہے دن منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جس کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اور جس کو سب سے افضل جو ہے جماعت یعنی کہ صحابہ نے نہیں کیا ہے، اور لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے آگے جو ہے اب ہم یہ پڑھیں گے، آ، اس سے پہلے والی حدیث سسٹر عامرہ جی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی شعبان کی نصف شب کو اپنی مخلوق کی طرف نگاہ ڈالتا ہے اور اپنی تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے یا اس سے بہر ہوئے کہ بدتمیزی، یعنی کہ جو بد اخلاق ہوگا بدبخت ہوگا، اور کس کے لیے؟ مشرک، بدبخت، کینہ والا۔ اور تو ہم اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ شعبان سر کے لحاظ سے جو صحیح حدیثیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اب جب ہم صحیح حدیثیں قرآن دیکھ لیں گے اور صحیح حدیث دیکھ لیں گے، اس کے بعد جتنی بھی روایتیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ موضوع ہیں، وہ سب کیا ہے؟ ان کے اوپر جو ہے ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور دلیل ہے بھی تو جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہیں نہ کہیں سے کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو جو اوتھینٹک ہے ہم وہ دیکھیں گے۔ تو ہم آج پڑھ رہے ہیں ماہ شعبان، جو کہ کیا ہے؟ اسلامک کیلنڈر کا کیا ہوتا ہے؟ 8واں مہینہ ہوتا ہے۔ ماہ شعبان میں ہم بہت ساری چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو کہ نہ صحابہ نے کی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا اس چیز کے بارے میں، اور نہ ہی جو ہے قرآن میں جو ہے اس چیز کے بارے میں کوئی آیت یا پھر جو ہے کوئی حکم آتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ ایسی چیزیں جو ہے کرتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ماہ شعبان کے لحاظ سے جو پہلی جو صحیح چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، اس کے بعد جو باقی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جس سے کہ کیا فرمایا پچھلی سلائڈ، معاذ بن سسٹر سسٹر عامرہ اس سے پہلے والی سلائڈ پلیز کو ریپیٹ کر دیں گے ایک بار۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی شعبان کی نصف شب کو اپنی مخلوق کی طرف نگاہ ڈالتا ہے اور اپنی تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے یا اس سے بہرے ہوئے کے، یا پھر کیا ہے؟ کس سے؟ جو کہ بدتمیزی سے کیا ہو؟ بھرا ہوا ہو۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کے لحاظ سے کون سی حدیث آتی ہے نیکسٹ سلائڈ میں۔ یہ سب صحیح حدیثیں ہیں جو کہ پیش کی جا رہی ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ میں تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا 2 مہینے لگاتار روزے رکھتے نہیں دیکھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ جو ہے سنن الترمذی کی ہے، اور یہ صحیح اوتھینٹک حدیث میں جو ہے کیا کی جاتی ہے؟ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ یعنی کہ جو صحیح حدیثیں ہیں وہ کیا ہے کہ ایک رات ایسی ہوتی ہے شعبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کس کو دیکھتے ہیں؟ مسلمانوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور ہر کسی کو معاف کر دیتے ہیں سوائے اس کے جو کہ کیا ہوتا ہے؟ جو کہ بدبخت ہوتا ہے، اور جو ہے کیسا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ کینہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب اس کے آگے ایک اور روایت آتی ہے جس میں بھی جو ہے روزوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ نیکسٹ ٹو نیکسٹ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک روزہ نہیں رکھا جب تک ہم نے یہ نہ کہہ دیا کہ آپ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ پورے مہینے کے روزے پورے کرتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان کے مہینے سے زیادہ نفلی روزے پورے کرتے نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا روزہ رکھتے اور پھر اسے رمضان سے جوڑتے۔ الحمدللہ، تو یہ جتنی بھی روایتیں ہم نے پڑھی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سب صحیح حدیثیں ہیں جو کہ شعبان کے تعلق سے آتی ہیں۔
हुँ, तो हमने कुरान में भी देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को कब तक दिया मोहलत किसकी इबादत की, हत्ता कि मौत आ जाए, तब तक इंसान को मुसलसल इबादत करनी है। ऐसा नहीं कि वो 5 साल का हो जाएगा तो सिर्फ छठे साल इबादत करेगा और 7वें साल से जो है बाकी उसकी चीज़ें शुरू हो जाएँगी। या फिर ऐसा भी नहीं है कि पूरे साल में से सिर्फ और सिर्फ एक ही रात इबादत करेगा और फिर पूरा साल जो है उसका क्या कर लिया जाएगा, कंसीडर कर लिया जाएगा, नहीं ना? तो ऐसा तो नहीं होता। तो हत्ता कि उसे मौत आ जाए यानी कि तब तक मुसलसल इबादत करनी है इंसान को। और क्या करना है, जैसे अब शाबान की बात है तो हम इस महीने के बारे में बात करेंगे। तो शाबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या रखे, रोजे रखे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के फर्ज रोजों के बाद क्या करते थे, सबसे ज्यादा जो है नफली रोजे शाबान के रखते थे। उसके अलावा शाबान में अल्लाह सुब्हानहू व ताला हर मुसलमान को जो है माफ कर देते हैं, सिवाय किसी मुशरिक या फिर किसके, कोई बदबख्त जो होता है। तो पहली फ़ज़ीलत क्या हो गई कि इसमें जो रोज़े हैं रखने वाले वो क्या है, वो सुन्नत है। उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें जो है क्या करते हैं, माफ़ करते हैं। ठीक है? इस महीने में रोज़े रखने हैं। अब क्यों? अब उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आपको किसी महीने में इतने रोज़े रखते हुए नहीं देखा। हाँ, गया जितने आप शाबान में रखते हैं। इसी का ही कंटिन्यूएशन है। तो आपने फरमाया ये महीना वो महीना है जिसमें लोग रजब और रमजान के दरमियान रोजों से गाफिल हो जाते हैं। और कहा हालांकि इसमें अमल उठाए जाते हैं और मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरे अमल जाएं तो मैं किससे हूँ, मैं रोजे से रहूं। तो अब जो है ये भी सही हदीस है। उसके अलावा जो है क्या कहा कि साल भर के अमाल किसमें, शाबान में जाते हैं। फिर असर और फजर में, है ना? हमने जब फरिश्तों वाला टॉपिक पढ़ा था तो दिन के कब जाते हैं, असर और फजर में। हफ्ते में कब जाते हैं, पीर और जुमेरात में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब रोजा रखते थे। और साल भर की कब जाते हैं, किसमें, सालाना जो जाते हैं वो शाबान में जाते हैं। तो पहला काम क्या है कि रोजे रखें। लेकिन ये महीना क्या है, हुर्मत वाले महीनों में से नहीं आता है ना? बस इसकी क्या है, यही फजीलत है कि इंसान रोजे रखे और जो है क्या कर लें। अब देखिए हम क्या करेंगे, और अब वो चीजें देखेंगे जो कि साबित नहीं है। तो अभी तक हमने जितनी भी 3 हदीसें पढ़ी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुआफ फरमा देते हैं और रोजे रखना इसके अंदर क्या है, सुन्नत है। और अब वो चीजें जो कि साबित नहीं है और जो सबसे ज्यादा जो है की जाती है, ना शरिया से साबित है और ना ही उस चीज से। तो शाबान में होने वाली कुछ बिदअतें हैं। सबसे पहले 15 शाबान यानी कि 15 शाबान की रात को एक रात जो है बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, शबे बारात का लोगों ने नाम दिया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला खास कर जो है सिर्फ और सिर्फ 15 शाबान को आते हैं और लोगों को क्या करते हैं, मगफिरत दिलाते हैं और कहते हैं कि ये सब बिद्दतें हैं। कि कौन-कौन सी बिद्दतें हैं, जो कि लोगों का कहना है कि 15 शाबान को क्या है, शब-ए बारात का मनाना। ये लैलतुल मुबारका के नाम से भी जो है लोग इसको कहते हैं। तो ये सब बिद्दतें हैं और जो जिस तरह से ये पेश की जाती हैं, उसके बारे में ज़िक्र हो रहा है। और फिर इसको सूरह अद-दुखान की आयत नंबर 3 और 4 से भी जो है साबित किया जाता है। ठीक है? पहले बारात कहा, फिर जब लोगों ने दलील माँगी तो इसको क्या कह दिया, इसको शब-ए मुबारका कहने लगे। अब शब-ए मुबारका भी जो है क्या करेंगे, हम लोग शब-ए मुबारका में भी उसको देखेंगे कि क्या चीज़ है। इसकी सब हर चीज़ जितनी भी बिदअतें हैं, हर चीज़ को क्या करेंगे, दलील के साथ जो है हम इसको वो नेगलेक्ट करते जाएँगे। तो अब देखिए कि शब-ए बारात के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 15 शाबान की में जो है क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, घरों को सजाते हैं, हाँ, और बहुत तरह-तरह के जो है क्या करते हैं, पकवान बनाते हैं। और लोग ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ास कर आते हैं, किस दिन आते हैं, 15 शाबान को आते हैं और कहते हैं कि है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, है कोई मुझसे वो करने वाला, तो मैं उसे माफ़ कर दूँ, या कोई मुझसे किसी भी तरीके का सवाल करे तो मैं क्या करूँ, वो सवाल कर दूँ। ये हदीस है, लेकिन ये हदीस ख़ास 15 शाबान के लिए नहीं है, वो हम आने वाली हदीस में देखेंगे। फिर 14 रकात की एक नमाज होती है जो कि पेश की जाती है, किसके हवाले से पेश की जाती है?
ये कि जो इंसान जो है क्या करेगा, 14 रकात नमाज़ पढ़ेगा। ये क्या है? ज़ईफ़ हदीस है बहनों, कि हदीस की शाबान की, कि जो जो इंसान जो शख्स 14 रकात नमाज़ पढ़ेगा और फिर उसके बाद कुछ सूरतें उनकी तिलावत करेगा, वो भी जो है पूरा लिखा लिखा हुआ बताते हैं उसके अंदर, कि तिलावत करेगा और ऐसा करेगा जैसा कि मैंने कहा, तो उसे भी जैसा कि मैंने कहा तो उसे भी क्या होगा, मैंने कहा तो उसे 20 कबूल हजों का और 20 साल के रोज़ों का सवाब दिया जाएगा। ये क्या है? ये एक मौज़ू रिवायत है, एक ज़ईफ़ रिवायत है बहनों, जो कि क्या शाबान के हवाले से पेश की जाती है। उसके अलावा जो है सलातुल अल्फिया जो है वो भी जो है इसके अंदर पेश की जाती है हदीस के तौर पर, कि एक क्या है ये, 100 रकात, इसमें सलातुल अल्फिया में क्या कहते हैं कि 100 रकात इसके इस तरीके से पढ़ी जाए कि, मतलब ये कहा जाता है, इसके बारे में पेश किया जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो इस रात में 100 रकात पढ़ेगा और हर रकात में क्या करेगा, 10 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ेगा और जो मांगेगा वो उसको दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर बदबख्त और जहन्नुमी उसका नाम लिखा हुआ होगा, तो वो अगर मानेगा तो उसका नाम नेकबख्त और जन्नती जो है क्या कर दिया जाएगा। ये जो है क्या है, ये एक मौजू रिवायत है। इब्न अल जौज़ी ने जो है क्या किया है, इसको अपने किताब में जो है क्या मौजू जो है करार किया है। उसके अलावा जो है एक और जो है बिदअत है, वो क्या है, मुर्दों की ईद। मुर्दों की ईद जो है वो कहा जाता है कि इस टाइम पर क्या होता है कि सारे जितने भी वो हैं मुर्दे, वो उनकी रूह जो है आसमान से आती है और मिलने आती हैं, और तरह-तरह की जो है बहुत सारी चीज़ें पेश की जाती हैं कि मुर्दे जो हैं वो क्या होते हैं, वो मिलने आते हैं, सारी चीज़ें। तो 15 शाबान, पहली बात तो शब बारात है। शब बारात के बारे में जो है हम क्या जान गए कि शब बारात जैसी जो है कोई चीज़ नहीं होती, ठीक? तो पहली रिवायत पेश की जाती है कि अल्लाह जो है क्या करता है, मुआफ़ करता है, ठीक? फिर उसके मुकाबले में हमें पता चला कि वो एक ख़ास वाक़या था जो कि अल्लाह के नबी क्या है, बकी वालों के लिए किया था कि अच्छा, 100 रकात वाली हदीस जो है, ये मौज़ू है। मौज़ू का मतलब ये है कि ये गढ़ी हुई है बहन, ये उससे साबित नहीं है। ये जितनी भी 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें जितनी भी मैं बोल रही हूँ, ये कोई अमल करने वाली चीज़ नहीं है। ये पेश की जाती हैं जिस तरीके से उसका तरीका बताया जा रहा है कि सलातुल अल्फिया में क्या है कि 100 रकात जो है इस तरीके से पढ़ी जाए कि उसके अंदर हर रकात में 10 मर्तबा सूरह अखलास, तो जो इंसान जो भी माँगता है और उसको उसका जो है वो माफ़ कर दिया जाता है, अगर वो बदबख्त लिखा हो और जहन्नुम में लिखा हो। तो ये बहरहाल एक मौज़ू रिवायत है, इस पर अमल नहीं करना है, क्योंकि इब्न अल-जौज़ी ने अपनी किताब में इसको जो है क्या किया है, मौज़ू करार दिया है। फिर इसके अलावा जो है इसके अंदर मुर्दों की क्या है, ईद इसको कहा जाता है कि रूह जो है वो उतरती हैं और आती हैं, और जो है तरह-तरह के पकवान जो हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। और जब रूहें जो हैं मिलने आती हैं, तो इंसान जो है कब्रिस्तान भी जाता है और जो है बाकी चीज़ें जो है क्या करता है, बाकी चीज़ें करता है कि वहाँ मिलने जाता है। बहरहाल अगर मतलब अगर इसके अंदर क्वेश्चन करा लिया जाए कि रूह अगर हमसे मिलने आती है तो हम लोग कब्रिस्तान क्यों जाते हैं, तो वो तो घर पर भी आ जाएँगी, है ना? तो कब्रिस्तान तो फिर जाने की ज़रूरत ही नहीं इंसान को। दूसरी रिवायत में ये था कि इस रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला आकर माफ़ करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं, हर रात को क्या करते हैं, मुआफ़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये पढ़ते हैं कि सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 36 क्या है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जब से उसने आसमान व ज़मीन बनाए हैं, उसमें से 4 हुर्मत वाले हैं। बहरहाल शाबान जो है हुर्मत वाला महीना नहीं है। तो क्या है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं, यानी कि जितने भी महीने हैं, 12 महीने, जितने भी हफ्ते आ गए उसके अंदर, उसके अलावा 365 दिन, उसके हफ्ते, उसके पूरा का पूरा साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ही है। यानी कि हमें जो हमने इससे पहले जो आयत पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या होनी चाहिए, इबादत होनी चाहिए, हत्ता कि मौत ना आ जाए। तो
कितने 12 के 12 महीनों में इबादत होनी चाहिए। कोई ख़ास दिन ऐसा ना हो, जो 15 शाबान को शब बारात का ज़िक्र है, तो कोई ख़ास दिन ऐसा ना हम मुकर्रर कर लें। हाँ, जब तक कि वो किस चीज़ से साबित ना हो, सही हदीस और कुरान से साबित ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके अलावा जो है, जो ये है कि 15 की रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आकर कहते हैं कि माफ़ कर देंगे, उसके बारे में आगे हमें क्या करेंगे, एक हदीस और देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, कि 15 की रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आकर जो है माफ़ फरमा देते हैं लोगों को। तो ये किस्सा जो है ये हर रात होता है, सिर्फ 15 की रात में नहीं होता। तो इसको क्या किया गया, 15 शाबान की रात में बहनों मिक्स कर दिया गया। मिक्स कर दिया गया यानी कि अपने पास से ही एक चीज़ को इजाद कर लिया गया, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जो है क्या है, जहन्नम की आग है। तो नेक्स्ट प्लीज़ हमरा जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा परवरदिगार बुलंद बरकत वाला है। हर रात को उस वक्त आसमानी दुनिया पर आता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है, वन थर्ड ऑफ नाइट। वो कहता है कि कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं। कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं उससे दूं। कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसको बख्श दूं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखो यहाँ पर जो है, जो रेड से लिखा हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा परवरदिगार बुलंद बरकत वाला है, यानी कि हर रात को। तो जो हमने इससे पहले पढ़ी कि 15 शाबान की रात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है आते हैं, और ये जो हदीसें पेश की जाती हैं और कहते हैं कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला, ये क्या है, ये मिक्स्ड कर दी गई। सिर्फ एक मखसूस दिन के लिए मिक्स्ड कर दी गई, क्योंकि तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, और वो शुक्रगुजारी वाली नमाज है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होगा कि जितने लोगों ने तहज्जुद में जो भी मांगा है वो उनको मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर रात जो है आसमान पर आते हैं, और हर रात जो है बोलते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला तो मैं उसे जो है वो दूं, जिस चीज का सवाल करता हूँ। तो किसी सिर्फ और सिर्फ 15 शाबान की रात को ऐसा नहीं होता। और जैसे कि हमने पहली पहली आयत को बस हम अपना मरकज बना के चलेंगे आज के टॉपिक में, कि इबादत जो है वो क्या है, वो मुसलसल करने वाला अमल है। यानी कि इंसान जो है क्या करे, उसको हमेशा जो है क्या रहे, करता रहे। तो यानी कि हर रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला आते हैं, तो हर रात बख्शिश की तलब हो, और हर रात जो है इंसान क्या करे, उठे और नमाज पढ़े। अब किसी दिन जो है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 रकात जो है मिनिमम है किसकी, तहज्जुद की, तो इंसान वो करे। ना कि उसके अलावा जो पेश की जाती हैं सलातुल अल्फिया और 14 रकात, और उसके अलावा इसके अंदर इतनी रकातों में इतनी जो है क्या पढ़नी है, इतनी रकातों में इतनी ज़्यादा सूरतें पढ़नी है, और इसका ये अजर है, उसका वो अजर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मैं हर रात मौजूद रहता हूँ, और हर रात जो है क्या करूँ, मुझसे बख्शिश तलब करो। हाँ, अगर कोई इंसान हर रात जाग कर उठ कर क्या करता है, क़यामुल लैल कर रहा है, तो वो इंसान जो है उस रात भी जो है क्या कर सकता है, उठेगा और उसी तरीके से क्या करेगा, नमाज़ पढ़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे इंशाल्लाह। तो अब देखिए कि ये आता है सवाल कि जब इतने फजाइल भी हैं इसके, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सबसे ज्यादा रोजे जो हैं क्या करें, इसी महीने में रखें, ठीक है। और जो है क्या है कि इतनी ज्यादा इसकी फजीलत भी बता दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है माफ करते हैं, इसमें मोमिनों को माफ कर देते हैं। और जो है सिवाय मुशरिकों के, और जो क्या होते हैं कीना परस्त और जो बुग्ज रखते हैं। तो हम करें क्या फिर, जब इतनी फजीलत है तो करे क्या है इंसान इसके अंदर, तो करना क्या है कि सबसे पहले अपने ईमान को मजबूत करना है। क्योंकि सबसे पहली जो हदीस हमने पढ़ी थी सैयद इब्न हब्बन की, वो ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शाबान में क्या करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नजर करम फरमाता है, और हर मुसलमान को यानी कि ईमान वाले को माफ कर देता है, सिवाय उसके जिसके दिल में कीना हो, या फिर जो है क्या हो, बदतमीजी या फिर बदबख्त हो। ठीक है। तो सबसे पहले इंसान को क्या करना है, अपना ईमान इतना मजबूत कर लें कि शाबान में जो है क्या हो जाए, इंसान की मगफिरत हो जाए। ठीक है। उसके अलावा अपने दिलों को साफ करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस
इंसान को छोड़ देते हैं जिसके दिल में क्या है, कीना होती है या फिर किसी के खिलाफ कोई बुग़्ज़ होता है या फिर कोई छल कपट होता है। तो अपने दिलों को साफ कर लें ताकि जो है क्या हो जाए, हमारी बख्शिश हो जाए। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक क्या करना है, इसके अंदर रोज़े रखना है। तो ये क्या हो गई, ये थी फ़ज़ीलतें। ठीक, हमने क्या देखा, हमने फ़ज़ीलतें देखी कि क्या-क्या फ़ज़ाइल हैं इसके, क्या-क्या इसके अंदर हमें अब करना है और क्या करने को कहा जाता है और जो कि साबित नहीं है ना? हमने बिदअतें देखी, बिदअतों से जो रिलेटेड सही हदीसें हैं उनको देख लिया कि जो कहा जाता है कि सिर्फ़ 15 शाबान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला आते हैं, तो हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर रात को जो है अपने बंदे को पुकारते हैं और कहते हैं कि कौन है जो क्या करे, मेरी बख्शिश तलब करे और मुझसे जो है रहमत की दुआ मांगे। उसके अलावा हमने देखा कि लोग जो है जिस तरीके से मनाते हैं, अब ये रूहों वाला कि जो मुर्दों की जो ईद है उसके बारे में देखेंगे। जो एक और बिदअत है कि ये मुर्दों की ईद है और ये ऐसी और वैसी है करके, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो लोग जो है क्या करते हैं, सूरह अद-दुखान की आयत नंबर 3, सूरह दुखान की आयत नंबर 3-4 जो है पेश की जाती है और इस रात हाँ, क्या क्या है इसका, अगर हम वो पढ़ें तर्जुमा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन क़द्र मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। ठीक है, तो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। तो अब जब लोगों से कहा गया कि शब बारात जैसा कोई वर्ड जो है, क्योंकि इससे पहले भी जब हमने रजब पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि जब कोई कुंडों की ईद के बारे में बात करे तो हर जो है हदीस किसमें, अरबी जुबान में उतरी है बहनों। तो हर अरबी जुबान वाले से पूछ लें कि भाई कुंडों की ईद को जो है क्या कहा जाता है, कुंडों की ईद को क्या कहा जाता है अरबी जुबान में। इसी तरीके से जब लोगों से दलाइल मांगी गई और कहा गया कि शब बारात को, बारात तो अब हिंदी का वर्ड हो गया या फिर उर्दू का वर्ड हो गया है ना, तो शब बारात को जो है क्या कहा जाता है अरबी में, तो लोगों ने सूरह अद-दुखान की आयत नंबर 3 की जो है क्या करनी देनी जो है दलील देनी क्या कर दी, पेश कर दी। जबकि ये तरीका जो है ये नहीं होना चाहिए। इंसान का तरीका क्या होना चाहिए, शरीयत का तरीका नहीं है। शरीयत का तरीका क्या है? शरीयत में पहले उसूल है, फिर उसके बाद उसके फ़ज़ाइल हैं और फिर उसके ऊपर क्या है, उसकी जो है क्या करनी है, फिर उसके उसकी जो है इंसान को उसको प्रैक्टिस करना है, उसको यानी कि उसके ऊपर अमल करना है। लेकिन जो चीज़ें बिदअतें होती हैं तो पहले वो ईजाद होती हैं, फिर उनके फ़ायदे बताए जाते हैं और फिर दीन को जो है या फिर किसी आयत को, किसी रिवायत को उसके अंदर क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। तो जब पूछा गया कि शब बारात को क्या कहा जाता है, तो लोगों ने सूरह दुखान की आयत नंबर क्या कहा, 3 को कहा कि इसको लैलतुल मुबारक कहा जाता है। अब देखिए लैलतुल मुबारक का अगर हम तर्जुमा यहाँ पर पढ़ते हैं तो क्या है, बेशक हमने उस बरकत वाली रात में उतारा। तो क्या चीज उतरी, क्या चीज नाजिल हुई, कुरान। और कुरान जो है अगर हम कहें कि किन रातों में जो है आया कुरान, किस महीने में नाजिल हुआ, तो अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, सिर्फ अगर इतनी बात जो है किसी को पता है कि उतारा क्या, उतारा नाजिल हुआ क्या, कुरान नाजिल हुआ और किस महीने में नाजिल हुआ, यानी कि किस चीज की बात हो रही है, रमजान की बात हो रही है ना। तो जब यहाँ पर मुबारकतुल लैल की बात है तो यहाँ शबे कदर की बात है, ना कि शबे बारात जैसी कोई चीज नहीं। तो बेशक हमने इस बरकत वाली रात में उतारा, क्या उतारा, कुरान उतारा। बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, यानी कि कुरान के जरिए लोगों को डर जो है क्या करने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर रोजी ने जो है रमजान में लैलतुल कद्र में उतरा, ठीक है। तो जब लोगों ने शबे बारात को लैलतुल मुबारका से क्या किया, जोड़ना शुरू किया, तो इस आयत का तर्जुमा जो इंसान, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो इल्म वाले हैं, वो समझ जाएंगे कि मेरी आयतों में जो है क्या लिखा हुआ है। तो बेशक हमने क्या उतारा, कुरान उतारा। तो कुरान कब उतरा, कुरान तो रमजान में उतरा था और शाबान, 15 शाबान तो कब मनाई जा रही है, शाबान में मनाई जा रही है। तो लिहाजा लैलतुल मुबारका का शब बारात से कोई लेना देना नहीं।
جب لوگوں نے اس آیت کی کیا کی دلیل دینی پیش کر دی، کیونکہ کسی بھی بدعت کا پہلے فائدہ دیکھا جاتا ہے، پھر اس کو اس کے اپنے حساب سے دین کو اس کے اندر فٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن شریعہ کا کیا اصول ہے؟ جو دین ہے، دین کے اندر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، پھر اس کی فضیلت بتائی جاتی ہے، پھر جو ہے اس کے پیچھے کے جو ہے کیا بتائے جاتے ہیں، فوائد بتائے جاتے ہیں، اور پھر پھر اس کے اوپر جو ہے کیا کیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اور پھر اسی طریقے سے سورہ دخان کی آیت نمبر 4 میں کہا گیا، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ 15 شعبان کو سب کا حساب کتاب ہو جاتا ہے، اور ساری چیزیں جو ہے کیا ہو جاتی ہیں، حساب کتاب ہوتا ہے لوگوں کا، اور ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اب کس رات کی بات ہو رہی ہے؟ ليلۃ المبارکہ کی۔ ليلۃ المبارکہ کیا چیز ہے؟ جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی کہ اب یہ 15 شعبان تو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شب قدر کی بات ہے۔ اور حساب کتاب کس میں بانٹ دیا جاتا ہے؟ حکمت والا، کیونکہ شب قدر کا نام ہی ہے تقدیر سے۔ ہم؟ شب قدر کا مطلب کس چیز سے ہے؟ تو فیصلوں کی رات نہیں ہے۔ فیصلوں کی رات کون سی ہے؟ شب قدر، یعنی کہ قدر اور تقدیر، پیمانہ، اسکیل، ہاں، تقدیر، اس کا نام کیا ہے؟ للت المبارکہ نہیں، شب بارات جیسی کوئی چیز نہیں۔ اگر کوئی اس چیز کی دلائل دے تو ہم جو ہیں پڑھے لکھے ہیں، علم والے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے آج یہ کلاس کر لی ہے کہ ليلۃ المبارکہ کا مطلب ہے شب قدر۔ اور شب قدر تو کب آتی ہے؟ رمضان میں آتی ہے، کیونکہ قرآن کب اترا؟ وہ رمضان میں اترا، تو 2 بار تو قرآن اترا نہیں ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ شب بارات ليلۃ المبارکہ نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اگر ہمیں شب بارات کے حساب سے کے حوالے سے سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 جو ہے کیا کر رہے ہیں کہ دیکھو اس میں ہے کہ اس میں جو ہے معاف بھی کیا جاتا ہے، اس میں فیصلہ بھی کیا جاتا ہے، اور اس میں ہر حکمت والا کام جو ہے بانٹ بھی دیا جاتا ہے، تو ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو کیا کرنا ہے ہمیں بتا دینا ہے۔ ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ تو رمضان کی بات ہو رہی ہے، ہم شعبان کی بات کریں، آپ شعبان کی دلیل دیجئے کہ شعبان میں جو ہے کہاں کیا لکھا ہے اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بدعت تھی جو ہم نے 5 پڑھی تھی، کہ یہ روحوں کی عید ہے۔ روح، روح کے بارے میں، یعنی کہ روح جو مردہ ہیں، جو کہ مر گئے، ان کے بارے میں، الحمدللہ۔ پھر اب اس کے بعد جو ہے کیا ہے، نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے جو روحوں کی عید تھا، اس کے لیے جو ہے کیا چیز یوز کی جاتی ہے۔ اب شب بارات یا شب قدر کے حوالے سے ایک اور آیت ہے جو کہ یاد نہیں رہا مجھے تھی، کہ قرآن کب نازل ہوا؟ جب اللہ نے کہا نا کہ ليلۃ المبارکہ میں ہم نے نازل کیا، ہاں، تو ليلۃ المبارکہ کب آئی؟ کیا نازل کیا؟ رمضان کا مہینہ، ہاں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو ہم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، اور تم پر کیا ہے؟ برد شواری نہیں چاہتا۔ اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار کرو۔ تو یہ اب جو یہ تھا کہ کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن کب نازل ہوا؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ تو شعبان سے ریلیٹڈ قرآن میں کچھ ہے ہی نہیں، الحمدللہ۔ تو اب ہم نیکسٹ سلائیڈ دیکھیں گے، جو روحوں کی عید کے بارے میں کہا جاتا ہے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روحوں کی عید ہے۔ چلو، روحوں کی عید کیا ہو گئی؟ تو روحوں کی عید، تو اب روحوں کی عید میں کیا ہے کہ مردوں کی جو روح ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں لوگ، مطلب جو بدعت ہے، جو لوگ مانتے ہیں اس طریقے سے، اس کو کہا جاتا ہے کہ روحوں کو چھوڑا جاتا ہے، پھر ان کے لیے پکوان بنائے جاتے ہیں، پھر لوگ جو ہے قبرستان جاتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ ساری روح جو ہے آتی ہیں۔ اور کسی کسی معاشرے میں اتنا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو روح جو ہے 1 سال تک آسمان میں نہیں جاتی، نعوذ باللہ، ہاں، کہ روح 1 سال تک آسمان میں نہیں جاتی ہے کسی کسی معاشرے میں، اور یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں بہنوں، یہ چیزیں ہیں دنیا میں، ٹھیک، کہ
लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि जब कोई इंसान मर गया तो रूह जो है वो ऊपर नहीं जा रही है, और ऊपर नहीं जा रही है तो वो 1 साल तक यहीं रहेगी। तो अब आसमान से जो है क्या है, रूहें आती हैं, और रूहें आकर जितने लोग 1 साल में मरे हैं उन सबको लेकर जाती हैं। सोचिए, ये आज का दीन इल्म है लोगों का, कि जो मरा वो गया नहीं ऊपर, 1 साल में सारी रूहें इकट्ठी हुई, और फिर उसके बाद जो है क्या हुआ कि अ, उसके बाद जो है सारी ऊपर से रूहें आई और सबको जो है ऊपर लेकर गई। इसीलिए जो है उन रूहों के इस्तकबाल में मीठा बनाया जा रहा है, कब्रिस्तान जाया जा रहा है, ठीक है? और इंसान जो है अपने आप को भी कब्र में जाकर जो है याद कर रहा है कि देखो मुझे एक दिन यहीं पर आना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इन सब चीज़ों से बचाए। ये वो मुआशरा है, ये जिसको मुसलमान कहा जाता है। मुसलमान का मतलब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फर्माबरदार होना। फर्माबरदार का मतलब क्या हुआ कि जो हुक्म दे दिया गया उसे मानना, अपनी कोई मर्ज़ी ना चलाना, अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ जो है ना इजाद करना जो कि है ही नहीं। फर्माबरदार का मतलब क्या हुआ? मानने वाला, सर को झुकाने वाला, कि जो हुक्म दे दिया गया उसे मान लिया। और हुक्म किस चीज़ का दिया गया? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रोज़ों का। और क्या कहा गया? कि अपने ईमान को बढ़ा लो। और क्या कहा गया? कि अपना जो है क्या ना रखो, अपने उसमें कीना ना रखो, बुग़्ज़ ना रखो अपने दिल में, ताकि तुम जो है क्या करो, बख्श दिए जाओ। और मुसलमान ने क्या कर लिया, अपने ही चीज़ों से, अपने ही लॉजिक से जो है इसके अंदर क्या की, चीज़ें बना ली। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसको रूहों की जो है क्या क्यों कहा जाता है। तो ये तो मैंने बताया कि पूरा कि किस तरीके से मरहले में चीज़ें चलती हैं, कि रूहें आती हैं और नहीं आती हैं, ठीक है? तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र के बारे में जानेंगे। तो लैलतुल क़द्र वही रात है जिसके बारे में जो है अभी पीछे हमने आयत पढ़ी सूरह अल बक़रा की आयत नंबर 185, कि इस रात में जो है क्या हुआ, कुरान जो है नाज़िल हुआ। तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, बेशक हमने उस कुरान को शब कद्र में उतारा है। और आप क्या समझें कि शब कद्र क्या है? शब कद्र फजीलत व बरकत और अज्र व सवाब में है, हजारों महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूहुल आलमीन, जब रूह की बात आती है तो लोग यहाँ की दलील देते हैं कि तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर रूह, कि देखो यहाँ रूह का आ गया, रूह रूह का वर्ड आ गया, तो इसका मतलब रूहें उतरती हैं इस दिन। रूहें, जब कोई भी चीज़ जो है कैसी होती है, पहले इजाद की जाती है तो फिर उसमें दलील फिट की जाती है। लेकिन शरिया क्या है? शरिया का उसूल ये है कि पहले उसकी अमल, फिर उसकी फ़ज़ीलत साबित हो, फिर उसको जो है क्या किया जाए, वापस से उसको जो है उसके ऊपर अमल किया जाए। तो सिर्फ़ इतनी आयत उठाई जाती है बहनों कि तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर रूह, कि देखो रूह है, हाँ, कि इस रात में फरिश्ते और रूहें आलमीन क्या करते हैं, उतरते हैं अपने रब के इल्म से, खैरात व बरकत के हर उम्र के साथ उतरते हैं। ये रात तलू फज्र तक सरासर क्या है, सलामती है। ठीक है? तो इससे इतनी ही आयत ली जाती है कि रूहें उतरती हैं। तो अब देखो ये है, ये आयत है तो रूहें उतरती हैं। अब देखो ये मैंने इसलिए लिया है, ये वाला स्क्रीनशॉट इस वजह से इसके अंदर डाला कि इसके अंदर जो है ब्रैकेट में जिब्राइल भी लिखा हुआ है। तो तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, मलाइका किस लिए हो गए? फरिश्ते हो गए। वर्रूह फीहा, ठीक? तो क्या है, यहाँ जो है बढ़े और बूढ़ों और मुर्दों की रूह के बारे में बात नहीं है। मलाइकतु व रूह का मतलब है जिब्राईल अलैहिस्सलाम, उनकी रूह को कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, सूरह अशुरा की आयत नंबर 196 में बताया जाता है कि ये किताब लेकर जो आए वो एक अमानतदार फरिश्ते थे। अमानतदार, जिब्राईल अमीन क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि वो अमानत लेकर आए थे, जैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा वैसा ही बताया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जो है काफ़ी सारे नाम हैं। उनको जिब्राईल, जिब्रील, रूहुल अमीन और रूह भी आपका नाम है। तो तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते, और जिब्राईल, जिब्राईल क्या लेकर आए थे? जिब्राईल कुरान लेकर आए थे। और कुरान कब नाज़िल हुआ? जो कि हमने पढ़ा सूरह बकरा की आयत नंबर 185 से, कुरान रमज़ान में नाज़िल हुआ, तो शाबान में रात की 15 को। जो रूहों का कांसेप्ट है वो भी इस चीज़ से क्या हो जाता है, बहनो रद्द हो जाता है, वो भी इस चीज़ से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इससे पहले हमने जितनी भी चीज़ें पढ़े
तो ये मायने उतरते हैं कि उस रात जिब्राईल जो है क्या है, अमीन आए और फरिश्ते आए। तो शाबान के हवाले से ये कुछ भी साबित नहीं है। आज हमने जितनी भी चीज़ें देखी उसके अंदर देखा कि मुसलसल इबादत करनी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस चीज़ का हुक्म दिया, मुसलमान का मतलब यही है कि वो हुक्म माने। हाँ, मुसल्ले ईमान का मतलब है कि फर्माबरदार रहे और क्या करे कि मुसल्ले ईमान यानी कि अपना जो है सर झुका दें। मुस्लिम का मतलब क्या होता है? जो घोड़े की लगाम होती है ना, उसको बोलते हैं। जहाँ उसको घुमाया वहीं वो घूम गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक हुक्म दिया कि हमने तुम्हें सिर्फ किस लिए पैदा किया? हमने तुमको सिर्फ और सिर्फ खालिस इबादत के लिए पैदा किया। ठीक? इबादत के लिए पैदा किया। फिर उसके अलावा कब तक? हत्ता कि तुम्हें मौत ना आ जाए, तब तक इबादत के लिए पैदा किया। ठीक है? तो हमेशा यानी कि पैदाइश से लेके तब तक इबादत करनी है। कोई एक खास दिन नहीं है इबादत का। हाँ, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ दिनों की फ़ज़ीलत बताई है, जैसे कि रमज़ान की फ़ज़ीलत है, 70 गुना सवाब है। उसके अलावा जो है क्या है? उसके अलावा जो अशरा आता है, किसका ज़ुल्हज का अशरा आता है, तो उसकी फ़ज़ीलत बताई है जो कि कुरान और सुन्नत से साबित है। तो उसके अंदर करने वाले काम भी बताए हैं, तो वो करें कि हाँ, इसमें ये करें। अब जिस तरीके से यहाँ बताया गया कि शाबान में जो है रोज़े रखने हैं, तो रोज़े भी रखें, ठीक? उसके अलावा हमने क्या देखा कि जितनी भी बिद्दतें कि 15 शाबान को माफ़ किए जाते हैं, कि 15 शाबान को नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर रात आते हैं और हर रात जो है माफ़ करते हैं, ठीक है? और हर इंसान की जो है मग़फ़िरत की जाती है सिवाय उसके जिसके दिल में क्या है, कीना और बुग़्ज़ होता है। फिर उसके अलावा हमने क्या देखा कि इसके अंदर इसको रूहों क्यों कहा जाता है, तो रूह जो है, जो आयत इसके लिए पेश की जाती है वो ये है, और इस आयत का जो असल मकसद है हमने वो देखा। फिर उसके अलावा जो है शब बारात को क्या कहा जाता है? शब बारात को लैलतुल मुबारका के की दलील दी जाती है, तो हमने वो देखा कि लैलतुल मुबारका में जो है कुरान नाज़िल हुआ, और कुरान तो रमज़ान में नाज़िल हुआ, और रमज़ान जो है और शाबान दोनों अलग-अलग महीने हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज हम सबको जो है यहाँ पर हक की बात बता दी। हक के बारे में जो है बता दिया कि क्या हक है और जो है क्या चीज़ है। अब देखें कि जब फ़ज़ीलत है, रोज़ों की फ़ज़ीलत है, तो 15 शाबान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करता है, काफ़िरों को छोड़कर मोमिनों को जो है माफ़ कर देता है। तो हमें क्या करने हैं, कसरत से जो है रोज़े रखने हैं इसके अंदर, क्योंकि सुन्नत से साबित है। ईमान को मज़बूत करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सभी ईमान वालों को जो है इसके अंदर क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, और कीना और बुग़्ज़ को अपने दिल से जो है क्या करना है, निकाल देना है। तो ये है माह शाबान में करने वाले काम, और इन सही हदीसों के अलावा जो भी हदीस पेश की जाती है वो क्या है, वो मौज़ू है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हमने अक्लमंदों के लिए बहुत सारी निशानियाँ रखी हैं, और जो जिसकी निशानियाँ, जिसका तर्जुमा, जिसकी तफ़सीर जो है आज हमने जो है खुली-खुली जो है देख ली। और जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने ये जो है इस रात में जो कोई ख़ास इबादत नहीं की, कोई ख़ास रोज़ा नहीं रखा, कोई जो है, अब तो घरों को सजाया भी जाता है बिल्कुल, जिस तरीके से दिवाली की लाइटिंग होती है, तो इस तरीके का जो है कोई भी चीज़ नहीं हुई। तो लिहाज़ा हम जो है दीन में कोई भी ऐसी चीज़ इजाद ना करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दीन में हर नया काम क्या है, बिदअत है। दीन में हर नया काम बिदअत है, और हर बिदअत जो है वो क्या है, गुमराही है। और हर गुमराही क्या है, जो इंसान गुमराह है वो क्या है, न जहन्नम का जो है ठिकाना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी को जो है क्या करें, बिदअतों से बचाएं, और ऐसी चीजों से बचाएं जो हमें जो है जहन्नम की आग तक जो है ले जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी बहनों को माह शाबान के पूरे पूरे रोजे रखने की हिम्मत दे और ताकत दे, और हम सबका ईमान बढ़ाने की ताकत दे, ताकि इस शाबान में हम सब जो है क्या हुए, बख्श दिए जाएं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी के दिलों से क्या करें, कीना और बुग़्ज़ को जो है निकाल दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो टॉपिक था वो इतना ही था, और इंशाल्लाह क्वेश्चंस आंसर के लिए जो है 10 मिनट लेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।